Yes, this question number 70. During the experiment, signal from the spaceship reached to the ground in 5 minutes. What is the distance of the spaceship from the ground? How to solve this question? बोलो. So first ये we will question, convert 5 minutes into seconds right, right. and then Then we multiply by the speed. speed of what? Speed of signals. Speed What is of that? light. Speed of signals is the speed of light. How much it is? How much it is? 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Okay, right. It is absolutely correct. तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा. चलो फिर क्वेश्चन नंबर क्लियर और नॉट टू एवरीबॉडी. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. Yes, sir. यहाँ पे हम लिखेंगे एक मिनट. we'll write here. Okay, थोड़ा सा x will be equal to x. Suppose distance is denoted by x. X is equal to c into t. V into t. V is the 3 into 10 power 8. That is the speed of light. Generally, it is denoted by symbol c. So both are same. Into t. Time, it should be converted into seconds. तो आंसर आ जाएगा इसका. Then I have marked the question number 74. 74 जो है, could you do that question 74? हो गया था ये? हाँ ये I think this page we have done it. फिर से चलो कोई बात नहीं. Just we are revising the points. What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? Speed time graph जो है parallel to time axis है. No, we have not done this question. So what kind of motion it is? Is it at rest or something else? बोलो. Sir, rest. Rest पर है. What about others? शुभम, शुभान, शिवानी रेस्ट पर होगा कि कुछ और आंसर होगा? 74. Sir, constant speed. Sir, Constant speed. sir, what is that time है speed time है? देखो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ आई रिटन यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी कम है बिकॉज ये तुम्हारा क्लियर नहीं है थोड़ा सा. बट if you have with you that you can see speed time graph है ना. You because इसमें क्या है ना, because I have shifted it from WhatsApp to the notability, इसलिए थोड़ा सा क्लियरिटी कम है. I have on the WhatsApp also assignment, वहां पे क्लियर पढ़ने में आ रहा है. If we draw the graph like this, here is the speed, here is the time. ठीक है, तो speed is constant, it is not changing. तो यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड वी कैन कॉल इट. यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं क्या इसको? कैन वी से यूनिफॉर्म मोशन? It is moving in the straight line. Yes, it is a uniform motion. It is also uniform motion. अगर straight line नहीं लिखा है, then we cannot say. We can say this much only. It is having a constant speed. That's all. We cannot say uniform motion unless it is. ग्राफ के लिए लिखा है. हाँ. देखो, just I am reading again. What can you say about the motion? अच्छा एक मिनट. Then I will go through. Just okay. Let me read it again. About the object, if its speed time graph is straight line parallel, अच्छा, okay, parallel to the time axis. So it is, we cannot say about uniform motion, but we can say it is having the uniform speed. All right, very correct. You are just straight line parallel to the time axis. Graph के लिए लिखा था. It is not that for the path. ठीक है, it is constant speed motion. All right, uniform, yes or no? Uniform, yes or no? Maybe, may not be, we don't know.
we need some further information. यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए ना, पर यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो यूनिफॉर्म मोशन होता. क्लियर? दीज पॉइंट्स आर वेरी क्रूशियल. ये जो है दे आर नॉट द simple point I am telling, simple points. If you are going for the competitive examination, these are the game changer I am telling you. These are the points which will make the lot of difference in your answering, right and wrong. जैसे multiple option correct question आते हैं ना JEE एडवांस में, तो उसमें से one of the options can be this, and second option देंगे, okay, speed is uniform, then it is uniform motion, it is uniformly accelerated motion. When more than one option correct are there, that time you have to be dead right. Every point should be crystal clear. So uniform motion cannot be said. ठीक है? We need some more information in sufficient. Maybe, may not be. चलो next question देखेंगे. 75th. Okay, इसमें थोड़ी clarity कम है. Let me read it from my cell phone. 75 में just a minute. Okay, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? बोलो. Area occupied by below the velocity time graph को क्या बोलते हैं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट. वेरी करेक्ट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज v इंटू टी निकालना है हमें, v इंटू टी. तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम. वेलोसिटी का फार्मूला पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम विल गो, डिस्प्लेसमेंट विल बी रिमेनिंग. तो वेरी करेक्ट. तो डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं. तो ये सब तुम लोग कंप्लीट कर लेना. जस्ट यू कैन राइट द आंसर आल्सो, और आप बाद में पूरा कंप्लीट करना. असाइनमेंट फुल असाइनमेंट शुड बी कंप्लीटेड. कितने क्वेश्चन हो गए हैं? अभी तो काफी गैप था. यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस. सर मेरा ये हो गया है. ये हो गया. और कितना बाकी है? कंप्लीट हो गया पूरा? सर पूरा नहीं हुआ, एंड का थोड़ा बाकी. हाँ, तो पूरा कंप्लीट कर लो. वी विल स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए. सर ने बोला है. हाँ बोलो. नहीं तो सर जैसे शर्मा सर कराते हैं वैसा भी कर सकते हैं. मतलब पहले 2 मीटिंग करेंगे. पहले फर्स्ट 40 या 50 मिनट्स में आप टीच करोगे, बाकी के 30-40 मिनट्स में हमारी असाइनमेंट और हमारे डाउट्स आपको पूछेंगे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे. हाँ, कर सकते हैं ऐसे. तुम लोग डाउट तो पूछ नहीं रहे हो, तुम लोगों ने किया ही नहीं है. पूछना चाहिए ना डाउट. सर मुझे ये नहीं हो रहा है, इस पेज में ये चाहिए. अगर तुमसे सब हो जा रहा है तो फाइन, ठीक है. तो फर्स्ट मीटिंग में भी हम लोग ये फिनिश कर ले है ना, और सेकंड क्लास में सेकंड मीटिंग में विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. ठीक है, चलेगा ऐसा. ओके. या सर उसका उल्टा भी कर सकते हैं, दोनों. हाँ, फ्रेश माइंड से पहले नया चैप्टर पढ़ना चाहिए. चलो ठीक है, अभी हमने स्टार्ट कर दिया है. अभी जब अपनी मीटिंग एंड होगी देन विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ. 80. स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड direction with the velocity of 5 meters per second. If acceleration of the stone during its motion is 10 in downward direction, what will be the height attained by the stone, and how much time will it take to reach that height? चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से. इसका आंसर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो वो they can just tell the answer. Others will do it quickly. सर टाइम 0.5 सेकंड्स और डिस्टेंस 1.25 मीटर है. Okay, which formula? एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा स्क्रीन चली गई. जस्ट okay, I have to just again share this. Just hold on. Which formula? सर पहले v इक्वल टू u प्लस 80 से टाइम निकालेंगे, और फिर Okay. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से डिस्टेंस.
कितनी स्पीड से फेंका था उसको? इसमें बहुत विजिबिलिटी बहुत कम है और I have to see iPad also simultaneously. I have to see mobile also. Okay. तो ठीक है, टाइम निकाल लेंगे। वी कितना लेंगे फिर उसमें? हाउ मच वी यू आर टेकन? सर वी कितना लिया? 0। वी 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए वी विल बी 0, है ना? तो उससे टाइम मिल गया। फिर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। और यू कैन डू वन थिंग आल्सो, यू कैन जस्ट डू वन थिंग, वन मोर थिंग। पहले वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से डायरेक्ट एस निकाल सकते हैं ना, कितनी हाइट दी, यस सर। है ना? तो वी हैव द मोर देन वन मेथड टू सॉल्व। ओके, तो ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए सबका। ये दिस इज रेगुलर क्वेश्चन, नो मच प्रॉब्लम शुड बी देयर इन दिस। ठीक है ना? उसके बाद जो है स्टोन का हो गया, और उसके बाद देखते हैं इस पेज में। ओके, नो नॉट, बाकी क्वेश्चन तो रेगुलर है। इस पेज पे मैंने मार्क नहीं किया था। ओके, इस पेज में मैंने मार्क नहीं किया। लेट मी सी कौन से क्वेश्चन है ये। 85 onwards है ना? लेट मी सी हियर, डिड आई मार्क हियर? ओके, इस पेज में कोई क्वेश्चन ऐसा है विच यू वांट टू आस्क? चलो पूछ लो इसमें। आई on this I have not marked the question, maybe all may be easy, therefore I have not marked। जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिए होंगे वही होंगे सब। लेट मी सी ऑन द सेल फोन। ये ड्राइवर वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्लास में हुआ है। 85 86 भी क्लास में हो गया था, और आई थिंक 87 आल्सो। some of the question done in the class, इसीलिए मैंने इसमें मार्क नहीं किया शायद। 88 88 बताओ। स्टेट which of the following situations are possible and give an example for each of these। an object with the constant acceleration but zero velocity। 88 में constant acceleration but zero velocity। Do we have this situation possible? Many times we have discussed this point, है ना? Can you hear me, all of you? Yes, sir. 88 का पहला पार्ट देखो, constant acceleration but zero velocity। Tell me। Are you giving the example? Are you paying attention? इसके दोनों पार्ट के आंसर बताओ। nobody is able to reply। ये क्लास में हुआ है कि नहीं बताओ? जीरो एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जीरो वेलोसिटी। we are discussing the class at least twice, don't you remember? Body thrown up at highest point, velocity is 0 but acceleration is 9.8 downward। clear to everybody? next part इसका देखो, an object moving in certain direction with the acceleration in perpendicular direction। एक certain direction में जा रहा है, acceleration perpendicular direction में है। सर हाँ बोलो। सर कैन यू रिपीट? सर वो मेरा वाईफाई चला गया था। देखो पहला पार्ट जो है, कैन द बॉडी हैव
constant acceleration but zero velocity? Answer is yes. When body is thrown vertically upward, at highest point, its velocity is zero and acceleration is g downward. ठीक है. Second part, object moving in certain direction. Moving in certain direction with acceleration in the perpendicular direction. Yes, sir, in circular motion. In circular motion. Which circular motion? Uniform or non-uniform? Sir, uniform. Uniform. It has to be uniform. Uniform circular motion में acceleration जो होता है centripetal होता है center की तरफ. It is center की तरफ along the radius. और velocity tangential होती है. Velocity is tangential. और acceleration is toward the center along the radius. That is the one of the example. और एग्जाम्पल दे सकते हैं. ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली. इनिशियल मोशन में डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन तो नीचे. जैसे हम थ्रो कर देते हैं तो बॉडी विल हैव द एक्सेलरेशन डाउनवर्ड. इफ यू थ्रो इट हॉरिजॉन्टली आल्सो एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड. ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी गोइंग अप डाउन एट द टॉप, गोइंग एट सम एंगल इन द एयर. हमेशा एक्सेलरेशन डाउन होता है. इवन इफ देखो सपोज तुमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया ना मोमेंटली, तो एक्सेलरेशन तो जी नीचे रहेगा, वेलोसिटी इधर रहेगी, बाद में चेंज हो जाएगा वैसे नीचे. बॉडी विल टेंड टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इधर रहता है और वेलोसिटी ऐसे रहती है. जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन नीचे सेंटर की तरफ, लाइक दिस. All right, so these are the examples. ठीक है, clear these points. तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 88. Let me see whether we can do some more question here in this, or we already discussed. Let me see. और सर्कुलर पाथ का ये क्वेश्चन किया है, 91 भी हो जाएगा. न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है. इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम. हाँ, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? 93, इफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम. Sir, can you show us the question? 93, एक मिनट. इसमें तो तुम्हें, मुझे तो पढ़ने में नहीं आ रहा. तुम लोग कैन यू सी इट? कैन यू रीड इट? I'm not able to read it. I have to see. Let me see. Let me use the power glasses. I am seeing in the mobile. चलो अभी देखता हूँ. हाँ, थोड़ा बहुत फर्क है. It is blurred image in fact. तुम्हारे पास असाइनमेंट होगा ना 93rd. मैं तो मोबाइल पे देख पढ़ रहा हूँ या आईपैड पे तुम्हें दिखा रहा हूँ. बट यू शुड हैव योर असाइनमेंट. तुम्हारे पास होना चाहिए. ओके. तो 93rd में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम. देन द मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. ये कंडीशन है. कब आती है ये? विच आती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या, और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो हाफ AT स्क्वायर. तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन. तीनों जो है मैंने तुम्हें बताया था, ऑल द 3 इक्वेशंस आर फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हम लोग. इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो हमें हाई लेवल ऑफ मैथ्स जाना पड़ता है, कैलकुलस से करने पड़ते हैं उसको. वो तुम्हें 11th में सीखोगे. बट यहाँ पर दिस मच ओनली. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है काइनेमेटिक इक्वेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी द आंसर इसका. राइट? क्लियर?
तो मार्क कर लो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाफ ए टी स्क्वायर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मोशन की इक्वेशन है। ओके, नाउ जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, ये नहीं पर 92 हो गया, 93 देखते हैं, 93 हो गया, नहीं ये 93 था इनफैक्ट, बस इसमें बाकी कर सकते हो तुम। एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, इसका आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट, मीटर बोलो कैसे? मीटर। सर, How क्योंकि come? डिस्प्लेसमेंट लिखा था, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। हाँ, एरिया sure. की हम वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द, हाँ वेरी गुड, वेरी करेक्ट, वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द एरिया, है ना, एरिया के साथ कंफ्यूज नहीं करना हमें। यहाँ पे हमें फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगी उसकी बात हो रही है, ठीक है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो उसके यूनिट क्या आएगा? ये 96, एक मिनट ना, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, लेट मी मार्क इट, 86 88. Any other question in this? In this, do you want to ask? और 89 क्वेश्चन क्या है इसमें? An artificial satellite is moving in the Earth's orbit. 89 देख लेते हैं। Calculate the, ये हमने क्लास में किया था। Okay, this we have done in the class. Okay. वो हाँ, कर मीटर लिया। और किलोमीटर। हाँ हाँ वो कर लिया। किलो, हाँ सर। only thing you have to remember कैसे किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। That we have done it. Shall we move on to the next page? क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इसी पेज का 85 हमने क्लास में कर लिया है, डू यू रिमेम्बर? देखता हूँ फिर से मैं ये पढ़ सर के आपने देखता हूँ। करवाए थे। करा दिया ना, तो चलो फिर आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये 4 पार्टिकल्स हैं, 4 बॉडीज हैं, कार हैं, ए बी सी डी, ए सबसे नीचे वाली ए है, नहीं ए यहाँ पर दिया है और बी है, सी या डी है। अच्छा सीक्वेंस चेंज कर दी क्या उन्होंने? तो विच इज द फास्टेस्ट? कौन सी बात, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। कभी कभी इंटरचेंज कर देते, पता, टाइम ऊपर दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे दे देंगे, फिर अपने आंसर चेंज हो जाएंगे। हाँ डिस्टेंस जो है ना, करेक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया तो आंसर सारे चेंज हो जाएंगे, बट रेगुलर क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं बुक्स में। तो कौन है फास्ट, विच कार इज फास्टर? फास्टेस्ट, सी इज द फास्टेस्ट, है ना, सी इज फास्टर देन एनी अदर। और उसके बाद जितना एंगल कम होगा उतनी स्पीड कम होगी, दैट्स ऑल। तो यू कैन जस्ट डू इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वाला कौन सा है? 97, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर below represent the uniform motion of the moving object correctly? यूनिफॉर्म मोशन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ए। ए, तो ऐसा भी तो यूनिफॉर्म मोशन करता है ये क्यों नहीं? व्हाई नॉट दिस? व्हाई नॉट दिस?
ये क्यों नहीं करेगा बोलो? सर रेस्ट पे। ग्राफ सर Sir, it is रेस्ट at rest. अगर हमने यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया तो सर फिर तो वो ये है आंसर, फिर वो फिर वो है। यूनिफॉर्म कांस्टेंट। हाँ, तो वी हैव टू सी y एक्सिस पे क्या दिया, दैट विल डिसाइड द Yes. आंसर, है ना? तो y एक्सिस पे यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, है ना? तो वी हैव टू रीड ग्राफ वेरी केयरफुली. स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट डे आई वाज एक्सप्लेनिंग यू स्लोप ओनली. स्लोप में एक्सप्लेन कर रहा था. आई थिंक स्लोप मुझे फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए तुम लोगों को, है ना? बिकॉज दैट डे आई वाज स्लाइटली फास्ट. डू यू रिमेम्बर स्लोप क्या एक्सप्लेन किया था मैंने तुम लोगों को, बोलो? ओके, स्लोप क्या होता है? एनीबॉडी नोज? नहीं आता? चलो देखते स्लोप का. मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू हियर. 11th की उसमें से मैं समझाता था. देखो, slope of any line or curve, and suppose we have this line, इसका which is making angle theta with the x axis. तो ये लाइन है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको. ग्रीन कलर में. ठीक, तो ये जो है इस लाइन का स्लोप बताना. स्लोप इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस. परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, और बेस इज ओ ए. परपेंडिकुलर को वाई लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, तो वाई बाय एक्स बोलते हैं इसको. स्लोप का सिंबल एम रहता है. ये लोग तुम लोग 11th में पढ़ोगे डिटेल में इसका, ठीक है? तो ओनली थिंग यू मस्ट रिमेंबर, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए तुम लोगों के. हेलो, तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है tan थीटा? नहीं सर, नहीं. सॉरी, कम अगेन. अभी पढ़ने का है? No मैथ्स sir, में? we have अच्छा, not ठीक है, read it. मैथ्स में होने का है. ठीक है, तो छोड़ दो फिर. ठीक है, ओनली थिंग, सॉरी, होने का है ये अभी. तो इतना याद कर लो, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर लाइन दिस अपॉन बेस. इसको ही हम लोग आगे चलेंगे. आगे जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो tan थीटा. तो ओनली थिंग दिस मच यू राइट, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस. एंगल हो गया ना, एंगल ट्रायंगल वगैरह हो गया ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ये पता है. ये बेस होता है. परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ये परपेंडिकुलर है. ये पता है कि नहीं पता है? बोलो जल्दी से. परपेंडिकुलर को हम ऐसे शॉर्ट Sir, में लिख yes देते sir, हैं पता है. परपेंडिकुलर को. हेलो, तो बेस एंड परपेंडिकुलर पता है ना, तो उसके रेशियो को हम लोग स्लोप बोलते हैं. ठीक है, मोर स्लोप, मोर एंगल, मोर स्लोप, कॉमन सेंस से बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, बस इतना नोट कर लो. इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस. मोर द एंगल, मोर विल बी द स्लोप. दैट्स ऑल. ठीक है, वापस चले. तो स्लोप की बात कर रहे थे. कौन सा क्वेश्चन है? स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप में डिवाइड करना पड़ता है. परपेंडिकुलर में क्या है बोले? वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट है, सॉरी, इसको मैं फिर से बनाता हूँ. ऐसे हमने ले लिया वेलोसिटी इधर और टाइम इधर. ठीक है,
तो वेलोसिटी, ओके उसी पेज पे वापस चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम जा रही, यहाँ पे देखो here is the velocity, here is the time। तो अभी हमने क्या पढ़ा, स्लोप परपेंडिकुलर टू द बेस, ये पढ़ा हमने। स्लोप इज, क्या बताया मैंने स्लोप का डेफिनेशन, परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर पे क्या है वेलोसिटी, बेस पे क्या है टाइम। तो वेलोसिटी अपन टाइम क्या होता है, इनफैक्ट चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हुई है वो, 0 से लेकर इट हैज रीच्ड अप टू द v। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन टाइम क्या है, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टू द टाइम इज व्हाट। आर यू देयर तुम लोग को, क्या होता है Yes, sir. Acceleration. एवरेज एक्सेलेरेशन, ठीक है, और एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। एंगल चेंज नहीं होता तो एवरेज एंड एक्सेलेरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज सब सेम रहते हैं। अगर हमने एक कांस्टेंट है, ये लाइन अगर एंगल चेंज नहीं कर रही तो एवरेज एक्सेलेरेशन एंड एक्सेलेरेशन बोथ विल बी सेम। अगर ऐसे है लाइन एंगल, तब एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन विल बी डिफरेंट, एक्सेलेरेशन विल बी डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी तुम लोग, बट अभी तुम्हारे उसमें इफ यू से एक्सेलेरेशन और एवरेज एक्सेलेरेशन बोथ आर सेम बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तुम्हारे कोर्स में होता है, तो दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो डिवाइड करना पड़ता है। देखो जब स्लोप पूछे ना कभी भी, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, एरिया पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। किसी ग्राफ का एरिया बोलेंगे, उन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दो और उनकी वैल्यूज पुट कर दो, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एरिया में, तो हमें वो जो बचेगा वो एरिया मिल जाएगा। तो स्लोप में डिवाइड करना पड़ता है, दैट्स ऑल। तो स्लोप में जिसका स्लोप पूछे उनको डिवाइड करके देख लो क्या कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, दैट विल बी आवर आंसर। ऑलराइट, तो स्लोप में डिवाइड करना है बिकॉज ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुम्हें, तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो ये आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 102, how will the equation of motion for an object moving uniform velocity change, एक मिनट, how will the equation of motion for an object moving with a uniform velocity change, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज हो जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में क्या चेंज हो जाएगा, will it remain as it is or some change will take place। सर v और u तो इक्वल रहेंगे सर। a will be 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में a 0, तो a वाले टर्म सब 0 हो जाए, हट जाएंगे। तीनों इक्वेशन में जो सेकंड वाले टर्म्स हैं वो सब हट जाएंगे, v will be equal to u, है ना, a is 0 तो वो टर्म हट जाएगा, तो दैट इज हाउ इट विल बी एक्सप्लेन। 102 को देखेंगे, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, moves along the x-axis with the constant acceleration of 5 for each second. It then continues with constant velocity. What distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? तो ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 102 का आंसर कितना आ रहा है।
how to solve this question? Yes, Shubhan. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तुम्हारा? सर कर रहा हूँ। अच्छा, सिद्धांत, आर यू देयर सिद्धांत? Yes, sir. ये किया था क्वेश्चन कि अभी कर रहे हो? कर रहा हूँ सर। सिद्धांत, तुमने एक बार भी होमवर्क करके नहीं भेजा है ना? सर मैं क्यों? आपको नहीं भेज तो भेजा था एक बार आपको मैंने। एक ही बार भेजा था, मैं तो भूल भी गया कब भेजा था। कृष्णांक, तुमने भेजा था? अभी अभी नहीं भेजा, रिसेंटली बहुत पहले भेजा था। सर ये असाइनमेंट और- का नहीं भेजा, उसके पहले के सब भेजे। सब भेजे? शिवानी, हाँ सर। शिवानी यू हैव सेंड? सर असाइनमेंट नहीं भेजा है, बाकी भेजा है मैंने। अच्छा, असाइनमेंट कंप्लीट करके रख रहे हैं कि नहीं तुम लोग? पूरा कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं? कितने क्वेश्चन हो चुके हैं शिवानी तुम्हारे असाइनमेंट के? हाउ मेनी क्वेश्चन है? यू आर रीच्ड अप टू हाउ मेनी क्वेश्चंस? कुल मिला के सॉल्व नहीं कर रहे तुम लोग हैं? सर अभी मैंने इतने 80 टाइम तक की है। 80 तक कर लिए? चलो अभी अभी हाँ कंप्लीट कर लेना पूरे। यस सर। ये बताओ इसका आंसर। फाइव, 8 एंड 12, ये तीन वैल्यूज दी हैं। 5 एक्सीलरेशन 5 दिया है ना, 8 सेकंड तक उसने एक्सीलरेट किया, तो पहले S1 निकालेंगे हाफ AT स्क्वायर से, ये